The next topic is main components of UN. UN. So the United Nations organization was founded in order to stop the conflicts between states and prevent the world from the being faced negative effects of the Second World War, to promote peace, brotherhood and human development. 51 countries, member states were included in it and have increased up to 193. ठीक है. The following are the main organ according to UN Charter. Number 1, General Assembly. General Assembly, all the UN member states have involved the General Assembly. Each member states can nominate a maximum of 5 representatives, but only one vote can be given by each member state. As usually on the conference is held for the General Assembly. However, several conferences can be held if the need to be. Its main functions are think and propose effective solution of problems related to peace and safety, and pass the UN budget and elect member other organ of UN. So what is General Assembly? इसका क्या क्या काम होता है? सोल्यूशन करना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रही है ना, रिगार्डिंग पीस, सेफ्टी और बजट पास करना. एक तरह से बेटा ये जनरल असेंबली जो है वो लेजिस्लेचर है वहाँ का, ठीक है. वो सारे लॉज बनाती है, जैसे कंट्री की पार्लियामेंट होती है, इसी तरह ये यूएन का जो है पार्लियामेंट है एक तरह से. नाउ सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन. इट हैज़ अमेरिका, है ना, अमेरिका, ब्रिटेन एंड चाइना, फ्रांस, रशिया. कितने हो गए? सारे वही परमानेंट मेंबर हैं इसके जो है ना. एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. 2 नॉन परमानेंट मेंबर सर्व ओनली 2 years at the time and elected regularly by the General Assembly. Its main functions are to establish peace in the world and resolve the conflicts and purpose solution, and use the power against any country if they need to be. The elect judge in International Court of Justice with the help of General Assembly. So बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गन है इसका, ठीक है. अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका सिक्योरिटी होती है, यहीं पर आपका जुडिशियल होता है, यही सब जो है ये मेंबर जो है इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है. अगर जैसे भी हमारा पाकिस्तान के संग कश्मीर को लेकर इशू है, तो हम जो अपनी वो वॉइस है वो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है. हम कहते हैं पीओके भी हमारा है, और पाकिस्तान कहता है कि ये जो इंडियन कश्मीर है ये भी उनका है. तो ये जो प्रॉब्लम है एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उसे कौन सॉर्ट आउट करेगा? तो दोनों हम जो है इसको कहाँ लेके जाते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में. हमने यूएन के अंदर इसको रखा हुआ है, वहाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर ये हमारा जो केस है वो चल रहा है. इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो यहाँ पर डिसाइड होते हैं, और ये इंटरनेशनल कोर्ट या जज जो है उस पर एक्शन भी लेते हैं अगर वो ऐसा हम महसूस करते हैं. नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल. द इंटर ऑर्गन ऑफ यूएनए हैज़ 54 मेंबर्स. ये कितने मेंबर्स हैं इसके? 54 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है. मेंबर्स स्टेट हैव टेन्योर 3 years, but 1/3 members are chosen every year.
the country can again to be chosen as the member of Economic and Social Council by completing in the tenure of 3 years to take misuse related to economic, social, cultural, health and cure and the organize the international submitted in function. ठीक है. Now next is the trusteeship council. The countries which are kept under the control and care of other UN members countries are taken care by the council. Evolution and the progress of the countries is a responsibility of the council. Since all the countries have become the capable enough to maintain their system and significance of trusteeship council can be observed. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इसके अंदर आते हैं कंट्रीज़, उनको इस काउंसिल के अंदर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल की जा रही हैं. अदरवाइज़ उनको जो अगर वो कैपेबल नहीं होते तो उनको इस ट्रस्टीशिप से हटा दिया जाता है. ठीक है. And now the International Court of Justice. There are total 15 judges. इसके अंदर कितने जजेस होते हैं? 15 जज होते हैं. कितने? The General Assemblies and the Security Council choose the judges. Tenure judge of 5 years. उसका जो वर्किंग पीरियड होता है वो कितने का होता है? 5 years का होता है. मेंबर एंड नॉन members of UN can take their case to be International Court of Justice. Court resolve the matter presented to it. International Court of Justice is main judicial unit of the UN and situated in the Hughes of Holland. ये जो है कहाँ पर है? ये हॉलैंड के अंदर है. कहाँ पर है ये? हॉलैंड में है. ठीक है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हॉलैंड के अंदर है. इसमें जो मेंबर्स नहीं हैं यूएन के, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो भी जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अपने केस को ले जा सकते हैं और वहाँ पर उनका जो ये प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज सेक्रेटरी. दिस इज द यूएन हेड ऑफिस headed by the Secretary General, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for the 5 years renewable term. All the permanent member countries of UN should agree. अगर वो 5 परमानेंट मेंबर्स अगर उसको एग्री करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी जो टर्म है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है. इट्स रोल इज कंट्रोल एंड सुपरवाइज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूएन जनरल सेक्रेटरी कैन टेक पार्ट इन कॉन्फ्रेंस and General Assembly, Security Councils, Economic and Social Council and Trusteeship Council. Its role is maintain a record of all the actions. ठीक है. तो बेटा मेन जो हमने आपको अभी तक डिस्कस किया उसके अंदर सबसे मेन रोल जो है वो किसका है? जनरल असेंबली का. इनके जितने भी हेड्स होते हैं वो कौन करता है? पहले ये सब क्या होता है, ये सब कौन मेंटेन करता है? आपका ये इनके थ्रू ही होता है. तो ये इसके जितने भी हेड्स होते हैं वो जनरल असेंबली. बट बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं. नाउ बेटा एक क्वेश्चंस है ये आपके जो इसके अंदर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको रेडी करने हैं
और ये जब हम आपकी जूम क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको ये हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं जब मैं आपको ये क्लास के अंदर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जूम क्लास के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। यू हैव रेडी with your queries in Zoom classes. This topic we discuss in our next Zoom classes. So tomorrow we will start our next topic, next chapter of this book, and you write down your queries in your separate notebook, and we will discuss in when we use our Zoom class. Okay, have a nice day.